یقیناً بہت سے لوگوں تک وہ دعوت نامہ بھی گیا ہوگا، کچھ لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوں گی، کچھ کو کہیں اور جانا ہوگا، اور وہ کام بھی یقیناً لازم ہوگا، ضروری ہوگا، اہم ہوگا، لیکن جس کی قدرت نے ڈیوٹی لگائی وہ یہاں پر باقی کاموں کو پیچھے چھوڑ کر پہنچ گیا۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، کہتے ہیں کسی زمانے میں، کسی دور میں ایک جنگل میں آگ لگ گئی۔ جب جنگل میں آگ لگی، درختوں پہ موجود پرندے اڑنے لگے، بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، جتنے جانور تھے۔ ایک چڑیا جو تھی وہ گئی ندی سے جا کے چونچ میں تھوڑا سا پانی بھرا لائی اور اس کے اوپر درختوں پہ لگی آگ پہ ڈالنا شروع کیا۔ ایک دفعہ ایسا کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا۔ اب جو لوگ وہاں باقی موجود تھے، جو مخلوقات موجود تھے، پرندوں نے اسے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو، اس سے آگ تھوڑی نہ بجھ جائے گی۔ وہ کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے اس عمل سے آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جب آگ بجھانے والوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں میرا نام بھی شامل ہوگا۔ اسی طرح ایک لسٹ وہ بھی تیار ہو رہی ہے، ایک تاریخ وہ بھی لکھی جائے گی جس میں یہ نوٹ کیا جائے گا کہ غریبوں، یتیموں، مساکین کے سروں پہ دستے شفقت رکھنے والے کون کون تھے، اور یقیناً وہ یہاں نہیں لکھی جائے گی، وہ کہیں اوپر لکھی جا رہی ہے۔ تو اس میں آپ احباب کا نام بھی شامل ہوگا کہ آج اس خیر کی محفل میں جو موجود تھا اس نے اپنے تئیں آ کر بھی کوشش تو کی، اپنا حصہ شامل کر دیا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ گزشتہ 12 برس سے میں دنیا نیوز کے پروگرام حسب حال کے ساتھ منسلک ہوں۔ شاعری، سیاسی فلم یا آف بیٹ یا مختلف جو چیزیں آپ سنتے ہو، میرے قدرت کا کرم ہے کہ میری لکھی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہی نقطہ نظر ہمیشہ رہتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں۔ یہ حسب حال کی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اس کا جو تعلق جڑا۔ تو اب مجھے بحیثیت شاعر، چونکہ میں یہاں موجود ہوں، مجھے کہا گیا میں نے اپنا کلام بھی سنانا ہے مختلف، تو شاعری کے حوالے سے میں ایک بات صرف آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جس طرح آپ لوگ یہ رائے دیتے ہیں نا کہ یار فلاں بندے کو سن کے بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا لگا، اسی طرح ہم لوگ بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ یار فلاں علاقے میں گئے تھے نا، وہاں کی آڈینس بڑی زبردست تھی، ان کا رسپانس بھی بڑا اچھا تھا، وہ بڑے اچھے انداز سے سن رہے تھے، وہ داد بھی دے رہے تھے، وہ ہر شعر کو اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، سنتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ یہ دو طرفہ عمل ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ کو ایک تقویت ملے گی، سنانے کا بھی لطف آ رہا ہوگا۔ ویسے تو مجھے یاد ہے ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کسی زمانے میں، لیکن وہ سنجیدہ شاعری کے لیے کہتے تھے بیٹا جو شعر تم لوگوں کو اچھا لگے نا، سمجھ آ رہا ہو، اس پہ کھل کے داد دینا، اور جو شعر نہ سمجھ آ رہا ہو اس پہ زیادہ داد دینا تاکہ تم لوگ پڑھے لکھے لگو۔ تو ہمارے وہ اس دور میں سیریز کے انداز جو تھا اس میں ایسا ہوتا تھا۔ تو اب میں کوشش کروں گا کہ میں سنجیدہ نہیں سناؤں گا، میں تو مزاح کی طرف آؤں گا۔ باقی یہ پیغام جو تھا وہ میں نے آپ کو پہلے پہنچا دیا، باقی ابھی ہمارے بہت پیارے دوست فاروق نظامی صاحب آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کتنا ضروری ہے آپ کا یہ عمل، یہ صدقہ، کہ کہا جاتا ہے نا صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس سے آپ کا نکاح ہوا ہو۔ تو چند اشعار، سیاست چونکہ گرم چل رہی ہے تو تھوڑے سے ہلکے پھلکے سیاسی انداز کو پہلے میں آغاز میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ سندھ ہاؤس وچ پی پی نے کی سینس لڑائی، سندھ ہاؤس وچ پی پی نے کی سینس لڑائی، سمجھ نہیں آئی۔ سندھ ہاؤس وچ پی پی نے کی سینس لڑائی، سمجھ نہیں آئی۔
बंदे टुट गए, गवर्नमेंट रोंदी फिरदी दवे दुहाई, समझ नहीं आई। और मियां ने लंदन जावन ली जो फिल्म चलाई, मियां ने लंदन जावन ली जो फिल्म चलाई, समझ नहीं आई। डील होई या 2 नंबर रिपोर्ट बनाई, समझ नहीं आई। और रन मुरीदी दे चक्कर विच फायदे चुके खौरे की रन मुरीदी दे चक्कर विच फायदे चुके खौरे की नून और शेर नू जेड़े टकरे दोवें जवाई। और स्टूडेंट बैठे हैं, एक शेर उनके लिए भी कि टीचर जी ने नेट उते जो बीन बजाई, समझ नहीं आई। भावें ऑनलाइन सी हुंदी रोज पढ़ाई, समझ नहीं आई। और वो भी अपनी जेब दे अंदर कंगी रखे, वांदा किथे। वो भी अपनी जेब दे अंदर कंगी रखे, वांदा किथे। जेदे सिर ते गिन के टोटल वाल ने 2.5, समझ नहीं आई। और 2-3 शेर और देखिएगा कि मैं समझता था कि फनकार समझते हैं मुझे, मैं समझता था कि फनकार समझते हैं मुझे, मेरे घर वाले भी बेकार समझते हैं मुझे। मैं असेंबली की इमारत हूं सियासत वाले, मैं असेंबली की इमारत हूं सियासत वाले, जाने हर बार क्यों बाजार समझते हैं मुझे। और मैं हूं चुपचाप सा, मैं असेंबली की इमारत हूं सियासत वाले, जाने हर बार क्यों बाजार समझते हैं मुझे। और मैं हूं चुपचाप सा, बोंगा सा, हवन्नक थोड़ा। मैं हूं चुपचाप सा, बोंगा सा, हवन्नक थोड़ा, और ससुरालिए बुजदार समझते हैं मुझे। चुपचाप सा, साईं सा, हवन्नक थोड़ा, और ससुरालिए बुजदार समझते हैं मुझे। और इन सब के बारे में एक और लीडर क्या कहता है कि ये सारे तो कठपुतली है, ये सारे तो कठपुतली हैं, असली लीडर समझाता है। ये सारे तो कठपुतली है, असली लीडर समझाता है। जब ज्यादा बारिश होता है, ये सारे तो कठपुतली हैं, असली लीडर समझाता है। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, और उसकी बड़कें यूं उर्दू की सब हदें फलांगने लगती हैं। उसकी बड़कें यूं उर्दू की सब हदें फलांगने लगती हैं। जो मार्च में मार्च वो करता है तो कांपे टांगने लगती हैं। जो मार्च में मार्च वो करता है तो कांपे टांगने लगती हैं। और 2 शेर और देखिएगा कि हैं जितने मर्द सबकी एक जैसी सोच है, लेकिन हैं जितने मर्द सबकी एक जैसी सोच है, लेकिन ज़बान पे कैसे आए जो छुपी दिल में सदाकत है। बज़ाहिर लाख कह दें काम ये कैसा किया उसने, मगर अंदर से इनका आइडियल आमिर लियाकत है। बज़ाहिर लाख कह दे काम ये कैसा किया इसने, मगर अंदर से इनका आइडियल आमिर लियाकत है। और 2 शेर और देखिएगा, बुढ़ापे की 3 निशानियां। ये बुढ़ापे की 3 निशानियां, हमारी जो बहनें बैठी हैं मैं उन्हें एहतियातन बता दूं कि ये बुढ़ापे का लफ्ज जो है ये मर्दों के लिए है, खवातीन 18 से आगे जाती नहीं है। तो मर्द हजरात जो बैठे हैं उनके लिए बुढ़ापे की 3 निशानियां याद रखो। अगर इन तीनों में से एक भी आपके अंदर मौजूद है तो जान लो कि आप बूढ़े हो गए हो। तो 3 निशानियां क्या है कि बूढ़ेपन की एक निशानी यह भी होती है, बूढ़ेपन की एक निशानी यह भी होती है, गर्मी के मौसम में सर्दी लगने लगती है। पहली निशानी, बूढ़ेपन की एक निशानी यह भी होती है
गर्मी के मौसम में सर्दी लगने लगती है, बंदा हर एक बात पे बुड़ करता रहता है, अपनी जाती बेगम अच्छी लगने लगती है। तो इनमें से कोई निशानी अगर आपके अंदर मौजूद है तो आगे आप खुद समझदार हैं। तो दो चार शेर और देखिए हमारी क्रिकेट टीम के हवाले से। अभी अल्लाह ने बाल बचाया है हमें टेस्ट मैच हारने से, और सारी दुनिया हैरान है कि ये कैसे ड्रॉ कर गए हैं। हकीकत ये है कि लग रहा था कि यकीनी हार जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद देखें ड्रॉ कर गए मैच को, कोशिश करते शायद जीत भी जाते। तो दुनिया की अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ नहीं पता। ये दुनिया की वाहिद टीम है जिससे कोई भी तवक्को नहीं की जा सकती और कोई भी तवक्को की जा सकती है। दोनों सूरतें हैं। मैं कहता हूं ये उस खराब बंदूक की तरह है जिससे दुश्मन भी डरता है, मालिक भी परेशान रहता है। किधर भी चल सकती है टीम, इसका कमाल यह है। तो इस टीम के लिए चंद अशार हैं कि सबसे हल्की साबित हो या सबके ऊपर भारी, सबसे हल्की साबित हो या सबके ऊपर भारी, पूरी एक नमूना है ये क्रिकेट टीम हमारी। और सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे, सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे। 90 पे एक आउट नहीं था, 110 पे सारे। सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे, 90 पे एक आउट नहीं था, 110 पे सारे। और इस खातिर भी जल्दी से है स्लिप में कैच फड़ाना, यहां से फारिग होकर इनको शॉपिंग पर है जाना। लेट हुए तो वही बल्ला बेगम फड़ सकती है, घर की तो रूटीन है बाहर भी फैंटी पड़ सकती है। और फील्डिंग का तो कुछ ना पूछो, हाल किया जो सबने। फील्डिंग का तो कुछ ना पूछो, हाल किया जो सबने। जैसे हाथों पर सरसों का तेल मला हो सबने, झुककर गेंद नहीं फड़ते कि मोहरे हिल ना जाए। फील्डिंग हो रही है, झुककर गेंद नहीं फड़ते कि मोहरे हिल ना जाएं। डाइव लगाने से डरते हैं गोडे छिल ना जाएं। और मिस फील्डिंग से रन देना भी इनकी रीत हो जैसे, गेंद को ये नहीं हाथ लगाते गेंद प्लीत हो जैसे। ये भी डर है अच्छा खेले कुछ इज्जत नहीं रहनी, ये भी डर है अच्छा खेले कुछ इज्जत नहीं रहनी। मैन ऑफ मैच बना जो उसको इंग्लिश बोलनी पैनी। ये भी डर है अच्छा खेले कुछ इज्जत नहीं रहनी, मैन ऑफ मैच बना जो उसको इंग्लिश बोलनी पैनी। कई दफा इंग्लिश के डर से टीम है अपनी हारी, पूरी एक नमूना है ये क्रिकेट टीम हमारी। अब थोड़ा सा अज़दवाजियात पे आ जाए जी, जरूर क्यों नहीं, बड़े सताए बैठे ने बेचारे। होता ना एक कहते ना एक बंदा इस तरह होया कि गल सुन खैर की होया, कहते याद रखो गली दे विच ध्यान रखना है जिन्ने नलके ने ना पाइपां ने टूटी दियां, इन्हां विच जहरीला पानी आ गया, किधर पानी ना पी बैठा, इसलिए शोर मचे है। वापस आया इन्नी देर में बुढ़ी भी उठ गई सी। मैं कहा किथे गए सो? कहता किधरे नहीं गया सा, कुछ नहीं, तू आराम इजी फील कर, पानी पी ते सो आराम ना। तो सताए बैठे होंगे ने जी यकीनन, तो उनके जज्बात की भी तर्जुमानी अभी करूंगा, यकीनन करूंगा। क्योंकि एक और ज़हन विच एवें गल आ गई कि एक बंदा सी ना, वो राती को 3 बजे किचन च बैठा बड़ा उदास चाह पीन दिया। बीवी आई, उन्हें वेख्या, उन्हें कहा इस टाइम चाह पी रहे हो, की होया, उदास कादे हो? कहता तेनों याद है मैं जो तेनों व्हाट्सएप ते या मैसेज करता हुंदा सा, एक दिन तेरे अब्बा जी ने सारे मैसेज पढ़ ले सन। कहनी हाँ हाँ याद है। मैं उन्होंने कहा सी SHO हाँ मैं, या मेरी हुण बेटी ना विआह कर लै, नहीं तो 10 साल जेल जाने लिए तैयार हो जा। कहनी हाँ जी बिल्कुल होया सी। तो बस भलीए लोके अज 10 साल पूरे हो जाने से। बेगम के हवाले से 2-4 शेर कि जो हर बात पे इतने ताने हैं मारे, जो हर बात पे इतने ताने हैं मारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। निगाहों निगाहों में शौहर को तोले, निगाहों निगाहों में शौहर को तोले, कहे सारी बातें भी मुंह से ना बोले।
ये हर रोज शर्टों की जेबें टटोले, ये हर रोज शर्टों की जेबें टटोले, करे चेक मोबाइल ये मैसेज फरोले, जरा सी भी ताखीर से घर जो पहुंचे ये बूथी सुजाले ये कुंडी न खोले, हिसाब अगले पिछले उसी दिन उतारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे, और सवेरे सवेरे ये रौला वो पाए, सवेरे सवेरे ये रौला वो पाए कि मुर्दा कफन फाड़ कर बैठ जाए, विदाउट एनी रीजन ये अर्ली जगाए, विदाउट एनी रीजन ये अर्ली जगाए, ये संडे को वॉशिंग मशीनें लगाए, ये शौहर के सब ख्वाब दे तोड़ विचे, ये शौहर के सब ख्वाब दे तोड़ विचे, ये सुते पे हेठों बेडशीट खींचे, ये मंजर भी सब पर ही बीता है अक्सर, निकलने लगे घर से जिस वक्त शौहर, इसे याद आए तभी काम सारे, ये लाजिम है पीछे से आवाज मारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। तो सरकार उनको जो राह में, और जब शादीशुदा हजरात की बात करते हैं तो कंवारों का जिक्र होना बहुत जरूरी है। हाय वेखे ना अंदरों हवा होने ही दो, हाय बनता है जी कंवारों, लेकिन शर्त ये देखिए इस हॉल में बड़े कंवारे बैठे होंगे, लेकिन इंटरनेशनल कुंवारा चाहिए। अगर कोई इंटरनेशनल कुंवारा बैठा है, एक बंदे ने दोवें हाथ खड़े किए ने, नहीं एक हाथ ना मैं मान लेना सी इंटरनेशनल कुंवारे हो। असल में शर्त है नहीं, शर्त यह है कि इंटरनेशनल कुंवारा वो है जो कम से कम शेख रशीद के दर्जे पे फायज हो। चलो जी मान लिया, हाँ नहीं नाम नहीं असी लेंदे जी। इंटरनेशनल कुआरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ जज्बात खुद पता लग जाएंगे कि आया वाकई ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नाम लै रहे हो ਉਹੀ ने या कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कुआरा की कहता है कि मेरे इस गम का उपा क्यों नहीं कर दे, मेरे इस गम का उपा क्यों नहीं कर दे, मेरा हुण छेती ना विआह क्यों नहीं कर दे। कदी लोग कहते सन गबरू जवान, कदी फिरौन दे जमाने दियां गल्लां, कायम अली शाह दे दौर दियां गल्लां, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। कि कदी लोग कहते सन गबरू जवान आ, हुण ते ख्याल करो मैं भी इंसान आ, और लंबियां कहानियां च पै नहीं सकदा, कल्लिया जे आखो भी ते रह नहीं सकदा। ओ मामे चाचे फूफिया ने सब नूं विआहता, ओ मामे चाचे फूफिया ने सब नूं विआहता, और मेरी वारी तुसी इस गल नूं दबाता, और मेरी गल मेरे दिल विच रह गई है, मेरी वारी सारियां नूं मौत पै गई है। राशिद साहब मैं सही कह रहा ना, मैंने नहीं पता कौन ने, मैंने आवाज पहुंची करना था। मेरे एक दोस्त सन, मैं उन्होंने गल कर, मेरी गल मेरे दिल विच रह गई है, और मेरी वारी सारियां नूं मौत पै गई है। और मोटे आ ते फिर की है वो समझाने आ, किसी दे प्यो दे कोलों लैके ते नहीं खाने आ। और साडे जे कई मत वाले भी ते हुंदे ने, साडे जे कई मत वाले भी ते हुंदे ने, काले आ ते फिर की है, काले भी ते हुंदे ने। और सच पुछो लोकां दियां सोचां उत्ते जाला है, और लैला भी ते काली सी, ओबामा भी ते काला है। सच पुछो लोकां दियां सोचां उत्ते जाला है, लैला भी ते काली सी, ओबामा भी ते काला है। और रिश्ते कराण वाली नूं यह गल कही है, रिश्ते कराण वाली नूं यह गल कही है, और गंजियां ते गंजियां दी गवर्नमेंट रही है। गल तुसी गलत पासे लै गए हो, मैं चौधरी सरवर की गल की है। रिश्ते कराण वाली नूं यह गल कही है, और गंजियां ते गंजियां दी गवर्नमेंट रही है। एवें किसी गल उत्ते अड़ना फजूल है, और जिंज दी भी कुड़ी है कबूल है, कबूल है। चलो देख लांगे हुणे। हुण करन वाली कोई सेवा लब जाए जे, हुण करन वाली कोई सेवा लब जाए जे, मैं ते राजी फेर भी हां बेवा लब जाए जे। आवाज सुनना चाह रहे हैं, कबूल है। हुण करन वाली कोई सेवा लब जाए जे, मैं ते राजी फेर भी हां बेवा लब जाए जे। राशिद साहब वालों आवाज आई है, कबूल है।
ਹੁਣ ਕਰਨ वाली कोई सेवा लब जाए जे, मैं तो राजी फेर भी हाँ बेवा लब जाए जे। दसो किनू दिल वाले दुखड़े सुनावा, मेरे हक मारे सारे अब्बे ते भरावा। आखां जे भरा नूं भाभी डैन बन जाती है, आखां जे भरा नूं भाभी डैन बन जाती है, मेरी वारी हर कुड़ी भैन बन जाती है। और भाभी कहती रिश्ता में वेख्या दबंग, भाभी कहती रिश्ता में वेख्या दबंग, उंज कुड़ी सुनिया थोड़ी क मलांगे। आखिया मैं भाभी चंगी भली तू सियाणी है, वो ब्याह दा इरादा है न्याज नहीं दवानी है। और अब्बा कहता चल पुत गुस्सा हुण जान दे, अब्बा कहता चल पुत गुस्सा हुण जान दे, तेरी फेर सही पहले निक्के दी कराण दे। तेरे नाल आम कुड़ी थोड़ा ही व्याहनी है, तेरे नाल आम कुड़ी थोड़ा ही व्याहनी है, तेरे लिए तो सीधी कतरीना ही लियानी है। एडा तू विक्की कौशल, तेरे नाल आम कुड़ी थोड़ा ही व्याहनी है, तेरे लिए तो सीधी कतरीना ही लियानी है। आख्या मैं रहन दे तू इंज दी नटाक कर, आख्या मैं रहन दे तू इंज दी नटाक कर, जिन्ना बंदा मान लवे उन्ना ही मजाक कर। और बाजे वाले नूं कई चांस दे बैठा वा, मैं ते हाल दा भी एडवांस दे बैठा वा। और सुन फरियाद मेरी रिश्ता जे लभ्या, सुन फरियाद मेरी रिश्ता जे लभ्या, अपनी करा के फिर बह गया है अब्बिया। यानी मेरा किहो जिहा रिश्ता कराया है, और वोटी नहीं लियांदी नवी मां लै आया है। लेकिन राशिद साहब मैं दुआ गुआ कि तुहाडा अंजाम है ना होवे। हाँ जी, वो कहते हैं कि जी हुण विआहिया वाले की फरियाद की है, यह तो कुआरा फरियाद कर रहा सी ना, कि कुआरा यह सोचता है कि यह मेरे जज्बात ने। शादीशुदा की कहता है, जेडे कह रहे थे ना कबूल है, यह उन्हां लई है कि मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताउणा है, मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताउणा है, करके विआह तैनूं लग पता जाना है, और कल्ला ही तू जागेगा, नसीब तेरे सौणगे। कल्ला ही तू जागेगा, नसीब तेरे सौणगे, फेसबुक अकाउंट तेरे रोज चैक होणगे। और होई जे डियाना भी ते उन्नू डैन आखेगा, होई जे डियाना भी ते उन्नू डैन आखेगा, माजी दी मंगेतरा नू तू भी भैन आखेगा। और सद के नियाणियां नू आखेगी ये जान के, ए भी तुहाडे फुफो ने सलाम करो आण के। और बीवी नू हमेशा रहनी एहो तशवीश है, हर खुशी गमी बाद होनी तफ्तीश है, तुहाडे अल वार वार कर दी ओ धौण सी, लाल सूट वाली ओ बरात विच कौन सी। और देंदा रह सफाइयां, उन्हें लैना आपे बुझ भी, देंदा रह सफाइयां, उन्हें लैना आपे बुझ भी, झल्लियां या भला मैनू दिसदा नहीं कुछ भी। और जिन्ना चन्ना बोलना ही बोल लै तू खुल के, जिन्ना चन्ना बोलना ही बोल लै तू खुल के, बाद चो जुबान कदी चलनी नहीं भुल के। और ए तू विआया इत्थे नीवी होई मुछ लै, ए तू विआया इत्थे नीवी होई मुछ लै, भावें जाके वड्डे हाजी होरां कोलों पुछ लै। और मैं ते बेवकूफ सीगा, तू ते सियाणा है, करके विआह तैनूं लग पता जाना है। बहुत शुक्रिया जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं आखिर में आपके लिए, बल्कि उससे पहले वतन के हवाले से, मुल्क के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से दो चार शेर जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मुल्क दुनिया का, जैसे हमारी टीम मुनफरिद है ना, सिर्फ टीम ही नहीं मुनफरिद, हमारा मुल्क भी उतना ही मुनफरिद है। मतलब इसके मसाइल, इसकी बातें, इसकी सूरत हाल हमेशा मुख्तलिफ, सिर्फ हुकूमती सतह पे नहीं, अवामी सतह पे भी। मतलब तुम कभी नहीं सुनोगे किसी मुल्क के बच्चे ने, कभी यह सुनने को मिले साडे बच्चे ने साबन खा लिया, पाकिस्तानियों का बच्चा ही है कि साबन खा लिया। अच्छा साबन खाता नहीं तो की किता, नहान लगे फ्लश च सुटता है। यह पाकिस्तानियों के मसाइल ने, साडे बच्चों के मसाइल ने। पता लगेगा किसी मुल्क के बच्चे की नहीं सुनोगे कि काके ने संघ के 5 रुपए का सिक्का फसा लिया, साडा फसा लेंदा है। ठीक है ना, यह साडी क्वालिटी है, साडे मुल्क की अपनी क्वालिटी है। कभी नहीं तुम सुनोगे किसी और मुल्क के फुफो का रिक्शा उल्ट गया, यह साडे मुल्क ही होंदा है। खौरे रिक्शे को पता लग जाता कि फुफो बैठी है। यह मसाइल ने मुल्क के, उन्होंने हवाले दे नाल 2-4 शेर कि ना बिजली ना CNG ना सेफ किसी दी जान, ना बिजली ना CNG ना सेफ किसी दी जान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और झूठे सच्चे केस बनाकर एक दूजे को रोले,
झूठे सच्चे केस बनाकर एक दूजे को रोलें, जहां पे कॉमन फायदे इनके वहां इकट्ठे हो लें। जेल ट्रेनिंग लेकर निकले बने सियासतदान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और बंदा इनको लम्या पाके चंगा फड़ के फंडे। बंदा इनको लम्या पाके चंगा फड़ के फंडे, खंभों साथ खलोते रहंदे जो वेले मुश्टंडे। जंज किसे दी ढोल किसे दा एवी नची जान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और आप ब्रायलर बन गए, हम तो खा खा चिकन मशीनी। अब देख लो, ब्रायलर ना ब्रायलर को टुरया जाता ना साढ़े को टुरया जाता। वही सूरत हाल है कि आप ब्रायलर बन गए, हम तो खा खा चिकन मशीनी। सुनियारे भी सोना छड़ के बेचने लग गए चीनी। 5 रुपए के सिक्के जितना 15 का अब नान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और जब देखो ये ऑपोजिशन पर हो नीली पीली, जब देखो ये ऑपोजिशन पर हो नीली पीली, अब तो गोडे गिट्टों में है बैठ गई तब्दीली। आपने बस घबराना नहीं है, आपने बस घबराना नहीं है, जारी है गर्दान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और आखिर में एक नज्म आपने जितनी मोहब्बतों से, जितने खुलूस से, जितने अच्छे अंदाज से सुना, लुत्फ आया सुनाने का भी। एक संजीदा नज्म सुनाना चाहूंगा जो मेरी पहचान भी बनी। बेपनाह वायरल हुई, दुनिया भर में जहां गया वहां पर इस नज्म की वजह से बहुत से लोगों का प्यार मिला। और ये मोहब्बतों की वो नज्म है जो मैं समझता हूं कि यकीनन हमारे अदब को देख लें, हमारे मुआशरे को देख लें, इसकी कमी नजर आती थी कि वाहिद किरदार है ऐसा जो महरूमियों का शिकार रहता है। और वो किरदार कौन है? वो है बाप। कभी गौर करके देख लो, अदब में भी, मुआशरे में भी मां की अजमत के मुतालिक बहुत कुछ कहा गया है। बाप के हवाले से आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती या बहुत ही महदूद नजर आती है। यकीनन जो कुछ लिखा गया ना मां के मुतालिक, वो उसकी अजमत का वो अशरे अशीर भी नहीं हो सकता। लेकिन बाप का है, बाप नहीं नजर आता आपको, अदब में नजर ही नहीं आता। घर की बात कर लो, लाशऊरी तौर पर औरत की भी इसमें मैं समझता हूं काविश होती है कि मां का बच्चे को सबसे बड़ा डरावा क्या होता है? आ रहे तो प्यो नो भी जो कहना है आप कह लो, डराना ही है ना, जो कहना है आप कह ले। अच्छा, अब होता क्या है, बच्चे को पता है मां अपना ही जी है, इसको पता लग भी गया ना कुछ तो खैर है। जेड़े भाई ने शामी 5 बजे आना है ना, यह बंदा ठीक नहीं गा, फासला आ गया ना, फासला आ गया। मर्द को समझ नहीं आती। अच्छा, वो भी घर च विलन जिहा बन के फिरदा रहता है, खाम खा तो गब्बर सिंह बनया होता है। मतलब कभी नोट करो, एवं गुस्से चढ़े होंगे ने घर च आके उन्होंने। तो ये असल में मैंने उसके अंदर जो छुपा हुआ शख्स है उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश की है। संजीदा नज्म है, मुझे यकीन आप उतनी मोहब्बत से सुनेंगे। उससे पहले एक शेर सिर्फ मां की अजमत के हवाले से कि अजल से ताअबद इतनी बड़ी पहचान नहीं मिलती, अजल से ताअबद इतनी बड़ी पहचान नहीं मिलती, उसे नाराज मत करना दोबारा मां नहीं मिलती। और बाप के हवाले से कि अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जा से, अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से। अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से। वो मां के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, याद रखना, वो मां के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है, जुड़ी है उसकी हर एक हां फकत मेरी हां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से। और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कटके रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है, गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से।
اور آخری بات کہ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. بہت شکریہ.